Good morning students, class 8 chapter number 11 mensuration exercise 11.4. In the previous video we have completed exercise 11.4 up to question number 4 and now we start question number 6. First we discuss about question number 5. In the question number 5 what is given? In this question number 5 we have to find out height of the cylinder, volume and diameter is given. Volume, its volume is 1.54 meter cube and its diameter is given 140 centimeter. Its mean radius is 70 centimeter because radius is half of diameter, and we can say that its radius is 0.70 meter. So it is radius and it is the volume. And we have to find out its height. Simply we can use volume formula and find out height. Formula of the volume pi r square h 1.54, value of pi 22/7, value of radius 0.7 and height. So after calculation you can very easily find out height of the cylinder. So question number 5 you try yourself. Now we discuss question number 6. In the question number 6 it is also very simple. Radius of a milk tank which is shape of a cylinder 1.5 meter. Length of the milk tank, because the portion of tank is in the form of horizontal, so length of the height of the cylinder is represented by length of the cylinder. So we can say that it is the length of the cylinder 7 meter. मतलब लेंथ को हम हाइट कंसीडर कर सकते हैं. एंड वी हैव टू फाइंड आउट क्वांटिटी ऑफ द मिल्क इन लीटर. क्वांटिटी ऑफ मिल्क, इट्स मीन हम इस कंटेनर में कितना मिल्क होल्ड फिल कर सकते हैं. सो वी यूज इट्स कैपेसिटी. कैपेसिटी मीन इट्स वॉल्यूम एंड द फॉर्मूला वी यूज इन द वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच. सो वॉल्यूम ऑफ मिल्क टैंक पाई आर स्क्वायर एच, यूनिट की पावर 3, पाई 22/7 आर. 7 is r, the value of r is 1.5 and the height is 7. So 22 multiply 2.25 meter cube. It is the volume of the milk tank. Volume of the milk tank, it's mean we can say that it is the capacity of the container. हम इसे कंटेनर की कैपेसिटी भी कॉल कर सकते हैं, यानी कि इसके अंदर इतना मिल्क है. बट वी हैव टू फाइंड आउट वॉल्यूम इन लीटर एंड द फॉर्मूला वी नो दैट 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर. सो टू कन्वर्ट इन, टू फाइंड आउट क्वांटिटी of milk, we convert into liter. So 2 multiply by 2.25 multiply by 1000, and after multiplication the value we obtained is 49500 liter. 49,500 लीटर मिल्क इस कंटेनर में आ सकता है. तो आई श्योर क्वेश्चन नंबर 6 इज क्लियर. जस्ट नोट डाउन. डिस्कस क्वेश्चन नंबर 7. इन द क्वेश्चन नंबर 7, इफ ईच एज ऑफ अ क्यूब इज डबल, अगर हम क्यूब की हर एक साइड को डबल कर दें इन द फर्स्ट पार्ट, हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स सरफेस एरिया इंक्रीज. तो उसके सरफेस एरिया में कितनी इंक्रीमेंट होगी. सरफेस एरिया मीन अ क्यूब कंटेन टोटल 6 सरफेसिस एंड दस ईच सरफेस इज स्क्वायर. तो हम जो 6 के 6 स्क्वायर्स हैं, अगर उनके एरिया को मिलाकर स्टडी करें, इट इज कॉल्ड इट्स सरफेस एरिया. सो वी सपोज दैट ओरिजिनल साइड ऑफ द क्यूब x सेंटीमीटर, सो न्यू साइड ऑफ द क्यूब इज 2x सेंटीमीटर एंड वी हैव टू फाइंड आउट इट्स इंक्रीमेंट इन सरफेस एरिया. सो फर्स्टली वी फाइंड आउट कि इसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है. वी नो दैट surface area
of cube is equal to 6 into side square unit square. So we find out its original surface area and new surface area. Original सरफेस एरिया यानी कि साइड को डबल करने से पहले उसका सरफेस एरिया 6x स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ आफ्टर जब हमने इसकी साइड की लेंथ को डबल कर दिया, न्यू सरफेस एरिया 6 इंटू 2x होल स्क्वायर, 6 इंटू 2x इंटू 2x, इट्स मीन 24x स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट कि हमें ये फाइंड करना है कि सरफेस एरिया कितने टाइम इसमें चेंज हुआ है. सो वी ऑब्जर्व दैट इट इज द ओरिजिनल सरफेस एरिया एंड इट इज द न्यू सरफेस एरिया. सो वी कैन से दैट न्यू सरफेस एरिया इज 4 टाइम ऑफ ओरिजिनल सरफेस एरिया. तो आंसर इज न्यू surface area is 4 times of original surface area. So I show question number 7. First part is clear. Similarly, in the second part we have to find out how many times will its volume increase. तो we can find out its original volume side की power 3 which is x cube and find out new volume 2x whole raised to power 3 it is 8x cube. So we observe that the volume becomes 8 times. So question number 7 second part, try yourself, just note down. Okay students, now we discuss question number 8, last question of the exercise and of the chapter also. In this question it is given that water is filling in a cuboid container at the rate of 60 liter per minute. What is the meaning of this 60 liter per minute? It means 1 मिनट में वो कंटेनर 60 लीटर उसके अंदर पानी फिल हो जाता है. एंड इट इज ऑल्सो गिवन दैट कि उस पूरे क्यूबॉइड का वॉल्यूम 108 मीटर क्यूब है. सो वी हैव टू फाइंड आउट टाइम इन आवर्स. उस कंटेनर को फिल करने में कुल कितना टाइम लगेगा. तो अब उसका तो पूरा वॉल्यूम हमारे पास ये है, तो पहले हम ये फाइंड करेंगे उसके अंदर जो पानी आ सकता है उसकी क्वांटिटी कितनी है. वैसे तो जो वॉल्यूम इस कंटेनर का है वो उसका होगा, लेकिन वी हैव टू फाइंड आउट क्वांटिटी इन लीटर बिकॉज जो रेट हमारे पास गिवन है वो लीटर के अकॉर्डिंग है. सो फर्स्टली फाइंड आउट क्वांटिटी ऑफ वाटर इन अ क्यूबॉइड. क्वांटिटी ऑफ वाटर जो उस क्यूबॉइड में फिल हो सकता है उस वाटर की क्वांटिटी 108 मल्टीप्लाई बाई 1000 लीटर. इट्स मीन 108,000 लीटर. यानी कि उस कंटेनर में इतने लीटर पानी होल्ड हो सकता है, वो इतना पानी फिल हो सकता है उसके अंदर. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट टाइम अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस. अगर मुझे इतने लीटर पानी फिल करना है तो टाइम लगता है 1 मिनट. तो वी नोट डाउन टू फिल 60 लीटर. जो टाइम की रिक्वायरमेंट है वो कितनी है 1 मिनट. यूनिटरी मेथड टू फिल 1 लीटर. टाइम की रिक्वायरमेंट ऑब्वियसली 1/60 मिनट. एंड टू फिल 108,000 लीटर यानी कि 1,08,000 लीटर. तो टाइम की रिक्वायरमेंट कितनी होगी 1,08,000 अपॉन 60 मिनट. एंड आफ्टर कैलकुलेशन 1800 मिनट यानी कि 1800 मिनट इतना टाइम लगेगा. बट वी हैव टू फाइंड आउट टाइम इन आवर्स. सो वी नो दैट 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर. इट्स मीन 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 आवर एंड द टाइम इज 1800 मिनट.
So 1800 upon 60 hour and the value is 60 hours, 30 hours, यानी कि 30 घंटे लगेंगे उस पूरे कंटेनर को फिल करने में। तो आई श्योर क्वेश्चन नंबर 8 इज क्लियर। जस्ट नोट डाउन एंड कंप्लीट आउट एक्सरसाइज एंड इट इज अ वेरी सिंपल चैप्टर। अगर आपको फॉर्मूले याद है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो ट्राई, and if you have any problem you can discuss with me. Thank you very much.